Dengue. It is the one of the most common disease in India and West Bengal in the late of the rainy season. Nowadays, lots of cases of dengue fever in the every hospital in daily basis. So today we try to gain some knowledge about dengue. Let's see what is the scenario of dengue in the global level and the India. In the global level, about 50 million per year cases reported. Most of them are children, and tropical countries of Southeast Asia and Western Pacific are at high risk. And in India, mostly in towns, greater than 1 lakh per year cases reported and greater than 200 deaths per year. In 2021, greater than 1.3 lakh cases and greater than 100 deaths. West Bengal, Tamil Nadu, Punjab, Kerala, Delhi, Maharashtra, Karnataka, these are the most affected states in India. DEN1 and DEN2 are widespread. These are the serotypes of dengue virus. We talk about the serotypes later in this discussion. At first, we must know that dengue is a viral disease caused by dengue virus. It is the most common arbovirus found in India and it belongs to family Flaviviridae. ये काफ़ी मशहूर फैमिली है वायरसेस का, जैसे कि इसमें काफ़ी मशहूर वायरसेस रहता है, जैसे कि जापानीज बी एनसेफेलाइटिस वायरस, जीका वायरस, येलो फीवर वायरस एटसेट्रा. काफ़ी मशहूर फैमिली है. और we told before that 4 serotypes: DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. These are the 4 serotypes of the viruses, dengue virus. And DEN5 was discovered in 2013 in Bangkok. In India, there are no cases of dengue 5 reported yet. अभी तक कोई भी केस हमारे इंडिया में रिपोर्टिंग नहीं हुआ है. बाद में क्या होता है देखा जाए. Now the vectors. Aedes is the vector for the dengue virus. We all know that. हम सबको पता है. But all Aedes mosquito are not responsible for dengue. There are 2 species which spread the dengue: Aedes aegypti and Aedes albopictus. And something interesting fact about Aedes is the Aedes bites in daytime and lays eggs in fresh water. दिन में काटती है और साफ पानी में अंडा देती है. एडिस इजिप्टी कुछ इंटरेस्टिंग है कि ये नर्वस फीडर है, मतलब बाइट्स 1%, बाइट्स मोर देन 1%, मतलब बाइट्स 1, मतलब इट बाइट्स मोर देन 1% टू कंप्लीट इट्स मील. मतलब वो एक बार पेट भरने के लिए वो एक से ज़्यादा इंसान को काटती है. एंड जो एडिस एल्बापिक्टस है, ये है कॉन्कॉर्डेंट फीडर, मतलब कंप्लीट मील फ्रॉम 1%, मतलब एक ही पर्सन को काट के अपना मील पूरा करके फिर वहां से जाएगी. अब हम देखेंगे कि कब आपको डेंगू हो सकता है. ऐसा तो नहीं है कि कोई डेंगू पेशेंट को काट के अगर कोई मॉस्किटो आ गया और आपको काट दिया तो आपको डेंगू हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एडिस बिकम इन्फेक्टिव ओनली व्हेन फीड्स ऑन वायरेमिक पेशेंट 1 day before the end of febrile period, almost 5 days. मीन्स एक पेशेंट का सिम्टम, डेंगू का सिम्टम्स आने के 5 दिन बाद अगर कोई एडिस मॉस्किटो उसको काटता है तो वो एडिस मॉस्किटो डेंगू इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार हो सकता है. ठीक है. एंड द एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज द 8 to 10 days इज नीडेड बिफोर द एडिस बिकम इन्फेक्टिव. मतलब वो डेंगू पेशेंट को काटने के 8 से 10 दिन बाद किसी को डेंगू में इन्फेक्ट कर सकता है. मतलब 8 से 10 दिन लगेगा, उसके बाद वो अगर आपको काटे तो आपके पास आपको डेंगू हो सकता है, वरना नहीं होगा.
and once infective it remains infective for life. तो एडिस मॉस्किटो अगर एक बार वायरस इन्फेक्टेड हो गया तो वो अपने लाइफ टाइम हर किसी को डेंगू देता रहेगा। एंड बस यही नहीं कि वो देगा, उसके बच्चे भी डेंगू का वेक्टर हो जाएगा। We call it trans-ovarian transmission, can pass the virus to the offspring. Okay. Now dengue, it is a mosquito, then one man, then again mosquito, then it affects several person, man and Aedes. No other such intermittent vectors. Okay. Man and Aedes is the principal result. Now the pathogenesis of that dengue infection. The pathogenesis is two types. One is primary infection and second is secondary infection. Primary infection हम किसको कहेंगे कि infect for the first time with any serotypes. मीन्स अगर पहली बार कोई पर्सन डेंगू में इन्फेक्ट होता है, वो चार में से कोई एक भी सेरोटाइप्स पे, तो हम उसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे। एंड द सेकेंडरी इन्फेक्शन मंथ्स टू ईयर्स लेटर, मतलब महीनों और सालों बाद अगर वो किसी दूसरे सेरोटाइप्स, मतलब अगर कोई पर्सन डेंगू 1 पे इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद डेंगू 2 पे इन्फेक्ट हुआ कुछ सालों बाद, तो वो जो डिफरेंट स्पीसीज सेरोटाइप्स में जो इन्फेक्शन है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। वो फिर से डेंगू 1 में इन्फेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके इम्यूनिटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो डेंगू 1 सेरोटाइप में फिर से इन्फेक्ट नहीं होगा, वो दूसरी किसी सेरोटाइप में इन्फेक्ट होगा। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। Now we see how our body responds against the virus. Our body produces two types of antibody when the dengue virus enters in the body. One is neutralizing antibody and second is non-neutralizing antibody. Neutralizing antibody is protective in nature for the human and it against the infective serotype it remains last long. इसीलिए जो प्राइमरी इन्फेक्शन का सेरोटाइप है वो दूसरी बार आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किसी दूसरी सेरोटाइप आपको इन्फेक्ट कर सकता है, पर पहली बारी नहीं कर सकते क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है। एंड द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थोड़ा सा दूसरी सेरोटाइप्स पे भी होता है अगेंस्ट अदर सेरोटाइप्स, बट वो कुछ समय बाद गायब हो जाता है। पर जो मेन सेरोटाइप्स आपको इन्फेक्ट किया उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो लास्ट लॉन्ग रहता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपके पास एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद होगा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी, that is non-neutralizing antibodies. It remains last long and produce against the other serotype but not against the infective serotype. मतलब आपको अगर सेरोटाइप 1 इन्फेक्ट किया तो ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार होगा सेरोटाइप 2, 3, 4 इसके अगेंस्ट, एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार होगा सेरोटाइप 1 के अगेंस्ट जो कि प्रोटेक्टिव है। और ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये प्रोटेक्टिव है वायरस के लिए। In secondary infection, instead of neutralizing, it protects the virus from the host immune system by inhibiting bystander B cell activation. We call it antibody dependent enhancement. मतलब ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये वायरस को प्रोटेक्ट करता है बी सेल को इनहिबिट करके, इसीलिए जो डिजीज का सिवियरिटी है वो काफी हाई होता है, मतलब मोस्ट सीवियर। तो इसे हम कहते हैं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट। That's why serotype 1 infection followed by serotype 2 is most severe. मतलब आपको अगर प्राइमरी इन्फेक्शन में सेरोटाइप 1 ने आपको इन्फेक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार है और नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार है सेरोटाइप 2, 3, 4 के अगेंस्ट। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन में अगर आपको सेरोटाइप 2 ने इन्फेक्ट किया तो क्योंकि सेरोटाइप 1 तो आपको नहीं कर सकता क्योंकि उसके अगेंस्ट तो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमारे पास है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, तो सेरोटाइप 2 अगर आपको इन्फेक्ट किया तो ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पहले से आपके बॉडी में है ये सेरोटाइप 2 को प्रोटेक्ट करके आपके इम्यून सिस्टम इसको मार नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सीवियरिटी ऑफ द डिजीज वो काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए मोस्ट सीवियर फॉर्म अगर आपको सेरोटाइप 1 इन्फेक्शन उसके बाद सेरोटाइप 2 इन्फेक्शन हो गया। इन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी एंड द क्लिनिकल स्टेजेस
in 1997 who classify the dengue in 3 category. Okay, at first the dengue fever. What is the symptoms? Rash, headache, lymphadenopathy, पेन, नौसिया, वॉमिटिंग, एपेटाइट लॉस, मतलब भूख ना लगना. ठीक है, उससे थोड़ा सीवियर है डेंगी हेमरेजिक फीवर. व्हाट इज द सिम्टम्स? इट इज हाई ग्रेड कॉन्टिन्यूअस फीवर, मतलब कि टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा, एकदम कॉन्टिन्यू हाई रहेगा. ठीक है, हेपाटोमेगाली, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, enlargement of liver, thrombocytopenia, decrease in plasma level, increase hematocrit, and Tornic test positive. What is the Tornic test? अगर greater than 20 spots per inch square in cubital fossa, अगर cubital fossa में वो जो हेमरेजिक स्पॉट है वो 20 से ज़्यादा अगर है इन 1 इंच पर स्क्वायर में, 20 से ज़्यादा अगर है तो हम उसे कहेंगे कि टॉनिक पॉजिटिव है. ये एक टेस्ट है फॉर द डेंगू. ओके, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन, गम, नोज एंड माउथ. द थर्ड स्टेज एकदम सीवियर स्टेज है जो कि डेंगू शॉक सिंड्रोम. व्हाट इज द सिम्टम्स? इट इज अ शॉक, मीन्स रैपिड वीक ऑफ पल्स, हाइपोटेंशन, एंड हाइपोटेंशन इज ग्रेटर लेस देन 20 mmHg, मतलब बीपी एकदम लो है, कोल्ड स्किन एंड रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी रहता है पेशेंट. 2009 WHO classification. This is the most recently described classification by WHO, which grade dengue into 2 stages in the basis of severity. Severity के हिसाब से 2 stages है, dengue with or without warning sign and the severe dengue. The dengue with and without warning sign is that the without warning sign is nausea, vomiting, rash, etc. And the warning sign is abdominal pain, mucus bleeding, liver enlargement, etc. are warning sign. And if untreated, these form turn into the severe dengue. Severe dengue, how we diagnose that? Severe plasma leakage, severe hemorrhage, and severe organ impairment. Okay. Now the factors determining the outcome. Infective serotype, type 2 serotype is the most dangerous serotype. Okay, and the serotype 1 followed by serotype 2, हमने पहले भी कहा था वो जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के लिए जो कि सेरोटाइप 1 उसके बाद अगर सेरोटाइप 2 हो जाए तो वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट्स होता है, तो इसीलिए मोस्ट सीवियर फॉर्म हो जाता है. एंड एज लेस देन ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप ऑफ एज is infected, but less than 12 years are more prone. Okay, and in pregnancy symptomatic infective newborn, मतलब अगर माँ को डेंगू है तो वो बच्चों को भी सिम्टम आ सकता है डेंगू का. How we diagnose the dengue? There are few tests. At first, the NS1 antigen detection test. How we diagnose the NS1 antigen detect? This by ELISA and ICT. ICT is a rapid test. Okay, the sensitivity is ICT is less, but we use it. This antigen become detectable from the day 1 of fever. इसीलिए and up to 7 days, मतलब day 1 of fever, जो बुखार के 1 दिन से 7 दिन के अंदर अगर हम NS1 एंटीजन डिटेक्ट करें तो हमें मिल सकता है NS1, एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक. ये और किसी डिजीज में नहीं मिलता है NS1 एंटीजन, ये डेंगू के लिए स्पेसिफिक है. ठीक है, एंड सेकेंड इज एंटीबॉडी डिटेक्शन इन प्राइमरी इन्फेक्शन, IgM. वी फाउंड इट द 5 days to 90 days. 5 days और 90 days के अंदर अगर हम टेस्ट करें तो IgM अगर हाई है तो इसका मतलब है उसका प्राइमरी इन्फेक्शन है, एंड अगर जो IgG हाई है तो इसका मतलब उसके पास उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन है, मतलब दूसरी बार डेंगू हुआ है इसका. एंड हाउ डायग्नोज द पास्ट इन्फेक्शन? द लो लेवल ऑफ IgG रिमेन्स डिटेक्टेबल फॉर 60 years. अगर आपको डेंगू हुआ है तो लो लेवल ऑफ IgG ऑलमोस्ट हमेशा रहेगा आपके ब्लड में. ठीक है,
एंड अदर एंटीबॉडी डिटेक्शन इज MSC ELISA, मेनली IgM एंटीबॉडी को कैप्चर करते हैं इस ELISA में। डबल सैंडविच ELISA जिसे हम कहते हैं, ये तो स्टैंडर्ड टॉपिक है। एंड द न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक सेरोटाइप टेस्ट। देन the virus isolation, we done it from the mosquito cell line. It is not for the diagnosis or in the hospital, it's for the research purpose, and it is very uncommon, very uncommon. Okay, then is molecular method. It is RT-PCR, detection of specific antigen of viral RNA, mainly in 3' UTR region, detect in blood from the -1 to +5 days on the onset of symptom. मतलब अगर फीवर के एक दिन पहले पहले ये स्पेसिफिक जीन आप डिटेक्ट कर सकते हैं इन द RT-PCR, एंड 5 डेज के अंदर ही, उसके बाद आप अगर करेंगे तो फॉल्स रिपोर्ट आएगा, ठीक है। एंड द जीनोटाइप डिटेक्शन, 13 जीनोटाइप प्रेजेंट फॉर द डिटेक्शन। फॉर DENV1 3 जीनोटाइप, DENV2 के लिए 2 जीनोटाइप है, DENV3 के लिए 4 जीनोटाइप है, और DENV4 के लिए भी 4 जीनोटाइप है, ठीक है। ये जीनोटाइप डिटेक्शन करके हम कह सकते हैं कि इसके मतलब डेंगू है या नहीं। Now the most important part is treatment. Unfortunately, no specific antiviral therapy present now. The only symptomatic support and symptomatic treatment done in the hospital. Okay, no specific medicine is present nowadays. Okay, only the supportive treatment, that is replacement of plasma, because the platelet count काफ़ी लो हो जाता है, इसीलिए प्लाज्मा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होता है। डेंगू का जो सीवियर फॉर्म है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा से होता है, इसलिए जो करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इसलिए डेंगू पेशेंट को काफ़ी पानी पीने के लिए कहते हैं कि पानी पीजिए, क्योंकि ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी का प्लेटलेट काउंट काफ़ी गिर गया तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी देना चाहिए इफ नीडेड। वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, तो प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, वी डन इट बाय मॉस्किटो कंट्रोल, साफ पानी कहीं पे ना जमे, लार्वा डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो नेट एटसेट्रा, वी ऑल नो दैट। एंड सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वैक्सीन। पहले हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था, और डेंगू वैक्सीन इज मोस्टली चैलेंज बिकॉज जो डेंगू वैक्सीन है इसको 4 जो सेरोटाइप्स है मेनली, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होना होगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। तो 2015 में ये अप्रूव हुआ है ह्यूमन यूज के लिए, जो जिसका नाम है CYD-TDV, इसका फुल नेम है काइमेरिक येलो फीवर डिजीज टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन। ओके, इसका कॉमर्शियल नाम है डेंग वैक्सिया, डेवलप बाय सैनोफाई पास्टोर। इसे हम दे सकते हैं 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज, एंड इसका डोज है 3 इंजेक्शन ऑफ 0.5 ml सबक्यूटेनियस एट 6 months इंटरवल। जो 6 महीने के अंतर 3 इंजेक्शन हम देंगे, वो भी 0.5 ml का सबक्यूट। एंड दिस वाज द ऑल डिटेल्स अबाउट डेंगू। थैंक यू।